This is the assignment problem. Okay, this assignment problem will be solved by a Hungarian method. First of all, we have to check it is a square matrix or non-square matrix. So here the columns are 1, 2 and 3. The rows are 1, 2, 3 and 4. So it is non-square matrix. So first of all, we have to add a one dummy column to make it square. Okay, so the first step is to add dummy column, that is D, with cost 0. So add dummy column, say D, with cost 0 rupees. Okay, so our assignment problem will become square. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Okay, so it is 110, 140, 60, 80, 100, 110, 90, 120, 70, 100, 130, 80, and the dummy column with cost 0, 0, 0, 0 rupees. Okay, so now our matrix is square matrix. Okay, and it is also a minimization form, so we not to convert it in minimization form. Okay, now our first step, what is our first step? Our first step is we have to subtract smallest element of each row from that element. Okay, but here each and every row, first row, second row, third row and fourth row, each row has a single 0. Why of this? Because of we add a dummy row with cost 0. डमी रो ऐड करने, डमी कॉलम ऐड करने से हमारी हर एक रो में एक एक 0 आ चुका है ऑलरेडी. ओके, सो अवर फर्स्ट स्टेप विल बी स्किप. सो अवर सेकंड स्टेप, step 2, because of each and every column has not a 0, so subtract smallest element of each column. Okay, from that column. So what we get here, we write A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Okay, so here our first column is 110, 80, 90, 100. Okay, so the minimum amount is 80, so subtract 80 from all other another elements, so we get here 30, here 0, here 10, here 20. For second column it is 100, the smallest element is 100, so subtract 100 from other elements, so we get here 40, here 0, here 20, here 30. From here the smallest element is 60, so subtract it 0, here 50, here 10 and here 20, and the last column has no any subtraction, so this is our 0. Okay, means each and every column and each and every row has at least one 0. Okay, so now we are going to step 3, that is the assignment. Okay, now look, what is the first step? We have to assign that 0, that first 0, that कि जहाँ पे भी सिंगल
ज़ीरो है, ओके, वो ज़ीरो को हमें असाइन करना है। तो फर्स्ट रो में 2 ज़ीरो है, सेकंड रो में 3 ज़ीरो है, थर्ड रो में 1 ही ज़ीरो है। सो वी हैव टू असाइन this 0. When we assign this 0, we cross the another 0. Okay. Now after crossing another 0, first row has now 1 0 remaining. So we assign here 0. So here there is no any 0 to cross. So leave it. Now for second row there are 2 zeros. So there is no choice for in that first row there is single zero, in the second first column that is single zero, and second column is also a single zero. So we have no choice. Okay, so randomly select any of zero. We select this zero. You can also select this zero. Okay, when you select this zero, then cross this zero. Okay, now check here 1 2 and 3 assignment. Okay, number of means order of matrix is 4 by 4. Order is 4. So total number of assignment must be equal to 4, but here the total number of assignment is 1 2 and 3. So total number of assignment is less than total number of assignment is less than order of matrix. Okay, therefore the solution is not optimal. Now we have to draw a horizontal and vertical line to cover all the uncovered zero. Okay, so how we draw this line? So there is one technique. Okay, so look, first of all you have to okay right here we हम लोग ये प्रॉब्लम को यहाँ पे लिखते हैं. So it is A B C D 1 2 3 4. Okay, it is 30 40 0 0, then it is 0 0 50 0, and here 10 20 10 0, here 20 30 20 0, and we have to assign here 0, cross it cross it cross it, here assign 0, then here assign 0 and cross it. Okay, this is our the previous step. Now for Hungarian method we have to first take mark the रो और कॉलम. आपको एक रो या कॉलम आपको रो ओके नॉट कॉलम. फर्स्ट यू हैव टू चेक इफ एवरी रो हैज असाइनमेंट. नो, द फोर्थ रो हैज नो असाइनमेंट, सो टिक दैट. ओके, जो भी रो में असाइनमेंट नहीं है वहाँ पे टिक करना है. ओके, नाउ सिंस इट हैज़ नो असाइनमेंट. ओके, नाउ वो रो में देखना है कहीं पे क्रॉस जीरो है तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे टिक करना है. इट हैज़ क्रॉस ज़ीरो. ओके, नाउ ये लाइन में देखना है कि यहाँ पे कहीं पे ओके यहाँ पे कहीं पे और कोई असाइनमेंट है तो नहीं है. है यहाँ ये लाइन में आपको मीन्स जो टिक की है वो कॉलम में आपको देखना है कहीं पे असाइनमेंट है तो हाँ यहाँ पे है तो यहाँ पे टिक मार्क करना है. ओके, नाउ ये जहाँ पे असाइनमेंट है वहाँ पे ये रो में देखना है कि कहीं पे क्रॉस ज़ीरो है. अगर ज़ीरो होता तो वहाँ पे टिक करना होता, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं. यहाँ पे टिक मार्क करने से यहाँ पे और कोई क्रॉस ज़ीरो नहीं है तो हमें यहाँ पे स्टॉप हो जाना है. नाउ लाइन ड्रॉ करनी है. सो ड्रॉ unticked row and ticked column. Okay, you have to remember this. आपको unticked जो रो है वहाँ पे लाइन करनी है और जो टिक की है ओके ये दोनों टिक की थी ये दोनों अनटिक थी तो वहाँ पे लाइन करनी है, और कॉलम में जहाँ पे टिक मार्क है वहाँ पे लाइन करनी है.
ओके ये जो प्रोसीजर है दैट इज द हंगेरियन मेथड, और इस तरह से अगर टिक मार्क करके लाइन करोगे तो मिनिमम लाइन में मैक्सिमम 0 कवर होंगे. ओके सो वी ड्रॉ अ लाइन. नाउ अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको और भी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. ओके नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, लुक एट द अनदर जो भी अनकवर्ड एलिमेंट है वो देखना है. 1 10 20 10 20 30 20. ओके ये जो सारे अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से सबसे मिनिमम सिलेक्ट करना है. तो सबसे मिनिमम है 10. ओके तो जहाँ पे भी अनकवर्ड एलिमेंट है वहाँ से वो 10 सब्ट्रैक्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो लिख लेंगे. ओके कहाँ कहाँ पे अनकवर्ड है, 1 2 3 4 5 6. ओके ये जो अनकवर्ड एलिमेंट है मीन्स उसके ऊपर लाइन नहीं ड्रॉ की है, उसमें से आपको सबसे मिनिमम एलिमेंट सिलेक्ट करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है बाकी के एलिमेंट से. तो 10 - 10 वी गेट 0, 20 - 10 10, 10 - 10 हियर 0, 20 - 10 10, 30 - 10 20 एंड 20 - 10 इज 10. ओके और जहाँ पे इंटरसेक्शन है दो लाइन का, कहाँ पे इंटरसेक्शन है दो लाइन का, तो यहाँ पे दो लाइन का इंटरसेक्शन है और यहाँ पे दो लाइन का इंटरसेक्शन है. तो जहाँ पे भी दो लाइन का इंटरसेक्शन है वहाँ पे आपको 10 ऐड करना है. जो 10 आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे वो 10 यहाँ पे आपको ऐड करने होंगे. तो यहाँ पे आपको 10 ऐड करना है और यहाँ पे आपको 10 ऐड करना है. और जहाँ से सिर्फ लाइन पास हो रही है ये एलिमेंट फर्स्ट सेकेंड और ये वो जो एलिमेंट है वो एज इट इज़ रहेंगे. सो 30 40 0 0 0 50 here 0 and 0. ओके सो क्या किया, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स. ओके वहाँ पे क्या किया, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऐड किया. ओके एंड अनकवर्ड एलिमेंट थे उसमें क्या किया, स्मॉलेस्ट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट किया. ओके एंड लाइन जहाँ से पास हो रही थी ओके वहाँ पे जो एलिमेंट थे वो एज इट इज़ रखे. ओके ठीक है ऐसा किया. सो नाउ रिवाइज दिस थर्ड स्टेप मीन्स असाइनमेंट जो हम लोग करते हैं उसको रिवाइज करना है. तो हम लोग फिर से उसको असाइनमेंट कर रहे हैं. तो फर्स्ट रो देखेंगे सिंगल ज़ीरो है, असाइनमेंट कर दिया. ये कॉलम में और कहीं पे ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो है तो इसको क्रॉस कर दिया. ये क्रॉस करने से यहाँ पे 2 0 बचते हैं. देन गो नाउ वी आर गोइंग टू फोर्थ स्टेप. फोर्थ रो में हमारे पास सिंगल ज़ीरो है तो यहाँ पे है सिंगल ज़ीरो तो यहाँ पे असाइन कर दिया तो उसके ऊपर क्रॉस कर दिया. यहाँ पे 2 क्रॉस हो गया है तो यहाँ पे सिंगल ज़ीरो बचा है हमारे पास. ओके अब आप ऐसा देखते हो कि यहाँ पे पहले हमने क्यों ज़ीरो किया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ज़ीरो था. ये सिंगल ज़ीरो पर हमने असाइन किया तो यहाँ पे हमें ऑब्वियसली क्रॉस करना ही पड़ेगा और यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्रॉस किया ही था तो यहाँ पे 2 क्रॉस 0 हो गए. सो यहाँ पे 3 0 थे उसमें से 2 क्रॉस हो गए तो यहाँ पे सिंगल ज़ीरो बचा. सो वी हैव टू असाइन हियर फर्स्ट. ओके व्हेन यू हैव टू असाइन देन क्रॉस दिस कॉलम. यहाँ पे हमने असाइन किया है तो हमें चेक करना है कि ये कॉलम में और कहीं पे ज़ीरो है कि नहीं है. तो ये कॉलम में यहाँ पे ज़ीरो है तो इसको क्रॉस किया. अभी ये देखो यहाँ पे क्रॉस करने से कहीं पे सिंगल ज़ीरो बचता है तो यहाँ पे सिंगल ज़ीरो बचता है तो यहाँ पे असाइन किया. नाउ लुक हियर हाउ मेनी असाइनमेंट 1 2 3 एंड 4. ओके सो हियर टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ओके assignment is equal to order of matrix. Okay so our solution is optimal.
Okay, now we have to find the assignment. So for 1, okay, for 1 it is C. ओके, सी की वैल्यू कितनी है, तो आगे देखेंगे सी की वैल्यू है 60. सो हियर 60 फॉर 2. बी इज इक्वल टू 100. ओके, फॉर 3 ए और फॉर 4 डी. ओके, सो फॉर 3 ए के लिए है आपके पास 90 और 4 के लिए है डी, दैट इज 0. सो फॉर 3 इट इज 90 and for 4 it is D and there is a dummy column, so it is 0. Okay, so the final answer is what? 250 rupees. Okay, so the final answer is 250 rupees. Understand?